of prenatal cause is TOC infection. T is toxoplasmosis. O refers to others, and sometimes it includes syphilis, rubella, cytomegalovirus, and herpes. Another risk factors are maternal diabetes or any other systemic disease of the mother, radiations, any type of radiations, prematurity, and placental insufficiency. This could be the prenatal causes. Perinatal causes could be birth asphyxia, prolonged labor, trauma, low Apgar, and neonatal jaundice. Okay, so question can be asked about the Apgar. Okay, it is given by the Virginia's Apgar, that's why it's named as Apgar. And Apgar, the full form is appearance, A is appearance, P is pulse, G is grimace, A is activity, and R is respiration. Okay, basically it is a rapid assessment tool to evaluate the newborn physical condition. Okay, it is done just after the birth, 1 minute after the birth, 5 minutes, 10 minutes, and 15 minutes. Usually, if score is not good and not ideal, so it is repeated in 5 minutes. Otherwise, it is done after the birth and after the 10 minutes or 15 minutes. Right? So what happens in Apgar is appearing, there is a 3-point scale, 0, 1, and 2. If we are talking about the appearance, that means we are talking about the color of the skin. If it is a blue, all the extremity and limbs, then 0. If it is pink, then it could be 1. Pink extremities or central body blue, or if all the extremities and nose and lips all are pink, is 2. Okay. Then pulse, absent is 0. If it is less than 100 is 1, more than 100 is 2. Grimace, if the child is talking, 0. If it responds to some stimulus, slow response, 1. If there is a prompt response, it is 2. If we are talking about activity, if there is no activity, absent is 0. क्लेंज है पूरा चाहिए 1, एक्टिव कर रहा है 2. रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है 0, स्लो है तो 1, और अगर विगरस क्राई है तो 2 है. राइट. सो अबगार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या स्केल है 0, 1, 2 का, क्या मैक्सिमम स्केल है. और 7 to 10 का स्कोर कर रहा है चाइल्ड, दैट इज नॉर्मल. अगर 4 to 6 का स्कोर कर रहा है तो दैट इज मॉडरेटली डिप्रेशन में है, चाइल्ड अफेक्टेड है मॉडरेटली. और अगर वो लेस देन 3 है तो सीवियरली अफेक्टेड है. ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस कुड बी आस्क्ड. सी एवरी स्लाइड जो मैं चेंज कर रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, रिमेम्बर. राइट. नेक्स्ट, पोस्टनेटल कॉजेज मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, and seizures. Another most important question can be asked, the most common type of CP. So basically when we talk about the type of CP, so based on motor characteristics or on based on tone, it could be spastic, dyskinetic, ataxic and mixed. Okay, spastic में diplegia हो सकता है, 2 limbs are involved, half body involved है, hemiplegia हो सकता है, all the 4 limbs involved, that means quadriplegia हो सकता है. But remember, the most common type of CP is spastic CP. If there is a change in tone, there is abnormal movements present, then it could be a dyskinetic. It can be a ethetoid and dystonic CP. Right? Remember, the characteristic movement of the ethetoid CP is a rubbing movement, and dystonic CP is a end-down movement. If there is a tone is low, involvement of cerebellum is there, then it could be a ataxic CP, and sometimes we can find the mixed type of CP. So, from this slide, the most important question can be asked: if the lesion is in the motor cortex or periventricular decomeditia will be there, then what could be the type of CP? Okay, so it would be a spastic. If basal ganglia or thalamus involved, this could be a dyskinetic and ethetoid of CP.
If cerebellum is involved, then it could be a ataxic type of CP. Okay, remember. If multiple areas, then it is a mixed CP. If we talk about the clinical features, muscle tone. Remember, if there is a spastic CP, तो tone increased मिलेगी. अगर ataxic CP है तो decreased hypotonia देखने को मिलेगा, right? Delayed milestones देखने को मिलेंगे. Persistence of primitive reflexes. Ideally जो primitive reflexes integrate हो जाने चाहिए थे एक particular time में. We all know about the primitive reflexes कि primitive reflexes during the birth और birth के बाद present होते हैं एक particular time में और वो अपना particular movement सिखा के integrate हो जाते हैं. But if there is a persistence of primitive reflexes even after the time of their integration, so that could be a feature. Poor balance and coordination, movement abnormalities and abnormal pathological gaits. Okay, if there is a increased tone in adductor muscle, so scissoring gait can be found. Okay, if there is a increased tone in the calf muscles, so child can walk on the toes. तो toe walking बोलेंगे और इसको हम equinus को gait बोलते हैं. थर्ड टाइप ऑफ गेट जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है डिस्काइनेटिक सीपी में, दैट इज अ क्राउच गेट जिसमें एक्सेसिव हिप एंड नी का फ्लेक्शन मिलता है देखने को और एक्सेसिव हिप और नी फ्लेक्शन के साथ चाइल्ड चल रहा है. फोर्थ टाइप का जो मोस्ट कॉमन गेट देखने को मिलता है दैट इज वाइड बेस गेट जो हमें अटैक्सिक सीपी में देखने को मिलता है. बिकॉज ऑफ बैलेंस प्रॉब्लम वी ऑल नो सेरिबेलम इन्वॉल्व हो रहा है, बैलेंस का प्रॉब्लम है तो उसको कोप अप करने के लिए अपना बेस ऑफ सपोर्ट चाइल्ड बढ़ा देता है और इस बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में वो वाइड बेस गेट के साथ चलता है, राइट. तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल गेट है वो मोस्ट कॉमनली किसमें मिल रहा है, राइट. वाइड बेस गेट तुम्हें मिलेगा अटैक्सिक सीपी में, डिस्काइनेटिक में क्राउच गेट देखने को मिलता है और स्टिक जो सीपी होता है उसमें सिजरिंग एंड टो गेट, टो वॉकिंग और क्लाइमस गेट देखने को मिलता है. Other associated problems are seizures, visual and hearing impairments, feeding difficulties, cognitive challenges, and speech delay. When we talk about the assessment, remember history is the major thing. ठीक है? Even in all the type of assessments, history suggests ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम कि जो हमारा असेसमेंट है वो टू डायरेक्शन में जाएगा. और स्पेशली जब हम सीपी का असेसमेंट करें तो हमको प्री नेटल हिस्ट्री से, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल हिस्ट्री से हम बहुत सारी चीजें हम गैदर कर लेते हैं. हमको ये समझ में आ जाता है कि क्या फाइंडिंग्स हमको आगे मिल सकती है, राइट. इफ यू कैन गेट कि जो बर्थ क्राई था वो डिलेड था, ओके, तो देयर आर चांसेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन. ओके, सो ये हिस्ट्री तुमको आगे सजेस्ट कर सकती है. या फिर मदर को कोई इन्फेक्शन रहा है, ठीक है, या फिर अगर हम बर्थ हिस्ट्री की बात करें तो चाइल्ड प्रीटर्म था या वेरी प्रीटर्म था, ओके, या फिर डिलीवरी जो हुई है वो फॉस्टर डिलीवरी हुई है या कुछ और प्रॉब्लम हुई है. तो ये जो हिस्ट्री है वो हमें काफी कुछ सजेस्ट कर देती है कि किस डायरेक्शन में आपका एग्जामिनेशन जाएगा. देन वी विल असेस अकॉर्डिंगली कि पोस्चर मूवमेंट एनालिसिस करनी है, मसल टोन असेसमेंट करना है, रेंज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्सेस जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, डीटीआर है और जो रिएक्शंस हैं और वो चेक करना है. फंक्शनली क्या ग्रॉस मोटर वो कर पा रहा है या फाइन मोटर कर पा रहा है, ग्रॉस मोटर स्केल से हम चेक कर सकते हैं. फंक्शनल एबिलिटीज उसकी फंक्शनल असेसमेंट स्केल से चेक कर सकते हैं. ऑर्थोपेडिक इश्यूज क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो यूजुअली जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्चर, हिप सबलक्सेशन, दिस कुड बी फाइन. ओके, another most important thing can be asked about the GMFCS. You all heard about the GMFCS? All of you know about the GMFCS, Gross Motor Function Classification System. Anyone can tell the difference between GMF and GMFCS? Can anyone tell? Okay, no one. Okay, great. Basically, when we talk about the GMFCS, it's basically a classification system which gives the idea
about the severity and prognosis of the cerebral palsy, right? But when we talk about the GMFM, what I told you here, that this is a gross motor function measure. ये एक स्केल है जो मेजर करता है कि जो चाइल्ड है उसका ग्रॉस मोटर फंक्शन कितना है या कितना मेच्योर हुआ है वो, ठीक है। और ये जो जीएमएफसीएस क्लासिफिकेशन है वो हमें बता रहा है कि वो कितना सीवियर है और उसकी प्रोग्नोसिस क्या हो सकती है। फिगर से बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट रहता है कि 0 to 2 ईयर का जो चाइल्ड है उसकी जो एबिलिटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या है, या 2 to 6 ईयर का जो है उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए और अभी क्या है, या 6 to 12 ईयर्स में क्या होनी चाहिए और क्या है, राइट। तो अगर हम इस फिगर से समझे तो जीएमएफसीएस लेवल 1 जो है, द चाइल्ड do anything without the limitation but might have some reduced speed and balance, right? मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह सब कर रहा है, बट स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है, बैलेंस कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बट अगर हम लेवल 2 की बात करें तो दे हैव सम लिमिटेशन। अगर आप दूसरे फिगर में जीएमएफसीएस लेवल 2 में देखेंगे तो वो विदाउट सपोर्ट चल नहीं पा रहा है, उसे सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, अगर वो स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहा है तो। जो हम फोर्थ फिगर में देखते हैं जीएमएफसीएस लेवल 3, दे नीड सपोर्ट सम टाइप ऑफ मोबिलिटी एड, ओके। तो अगर नॉर्मली भी एक प्लेन सरफेस पे भी चलना है बच्चे को तो ही और शी नीड्स दी मोबिलिटी एड, ओके। इफ यू टॉक अबाउट द लेवल 4, सेल्फ मोबिलिटी इसमें लिमिटेड है, किसी का सुपरविजन लगेगा, बहुत ज्यादा दूर तक चाइल्ड अपने उस पर नहीं चल सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लेवल 5, देयर विल बी अ सीवियर लिमिटेशन, कंप्लीट असिस्टेंस विल बी देयर, ओके। सो हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर हम बात करें तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सीवियरिटी कितनी है, ठीक है, लेवल 1 से ज्यादा लेवल 2, लेवल 2 से ज्यादा लेवल 3, इस तरीके से सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमको सीवियरिटी के साथ साथ प्रोग्नोसिस भी बताता है, राइट। कैसे प्रोग्नोसिस बता रहा है कि जो लेवल 1, 2 और 3 है उनका जो मोबिलिटी है वो बेटर रहेगा rather than GMFCS level 4 and level 5 because you can't change the GMFCS level of any child. Okay, always remember you can change the GMFM score. Okay, जो मैं ग्रॉस मोटर फंक्शन मेजर ऑन स्केल से चेक करें, you can change according to the therapy somehow, but we can't change the GMFCS level of any child. Okay, so we can predict the prognosis of a child at the time of assessment unless he or she is a neglected case. Okay, ऐसा हो सकता है कि अर्ली थेरेपी नहीं हुई है और वो केस बहुत नेग्लेक्टेड था, आपके पास आया ही 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। This is a subjective thing we can discuss later on. So remember, this could be asked कि level 1 में क्या चीजें होती हैं, that is without limitation but speed reduce हो सकती है, level 2 is with limitation, level 3 needs support, level 4 self mobility is limited, level 5 is severe limitation, complete assistance, right? Okay, next is your management. Oral medications जो most commonly दी जाती हैं, baclofen, diazepam and botox का इंजेक्शन करवा दिया जाता है। And sometimes in case of dystonic CP, if it is dopa responsive dystonia, it could be improved with the levodopa. सर्जरी में मोस्ट कॉमन जो सर्जरी होती है टू रिड्यूस दिस स्पास्टिसिटी इज अ डॉर्सल राइजोटोमी, जिसमें सेलेक्टिवली सेंसरी नर्व्स को कट कर दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जिससे हमारे सिग्नल्स ही कम जा रहे हैं और स्पास्टिसिटी रिड्यूस होती है। सेकेंड जो सर्जरीज हैं जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन की डेवलप हो रहे हैं उनकी वजह से करनी पड़ती है, दैट आर जॉइंट एंड टेंडन रिलीजेस, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं उसकी वजह से। एक और सर्जरी करी जाती है जिसमें बैक्लोफेन पंप को इंसर्ट करा दिया जाता है एब्डोमेन में और वो स्लो पंप जो कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड से एंड सेंड्स द बैक्लोफेन टू रिलैक्स द मसल। ओके,
Next, another surgery is body correction surgeries. Usually, this is also because of sometimes if there is a femoral and development structural problems if there is present. Okay, tibial torsion or any other body that needs. Next is the physiotherapy goal is improve the posture alignment, enhance the functional mobility, prevent the secondary complication. Always remember secondary complications को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होता है ये फोकस हमारा हमारा प्राइमरी हो जाता है. ओके, तो स्टार्टिंग से हमारा अर्ली इंटरवेंशन इसी पे पता चलता है कि जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होने चाहिए. फैसिलिटेट द नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न, प्रमोट द इंडिपेंडेंस इन एरियाज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर हम अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन थिंग इज पोजिशनिंग. ऑलवेज रिमेंबर जो पैटर्न चाइल्ड शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको पोजीशनिंग देनी है. इफ द चाइल्ड इज शोइंग द एक्सटेंसिव थ्रस्ट, सो ऑलवेज गिव द पोजीशनिंग लाइक जो फिक्स पोजीशन में उसको रिलैक्स पोजीशन में रखने की कोशिश करें. और उसके अकॉर्डिंग हमको मदर को सिखाना है कि हैंडलिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं. रिफ्लेक्स इनहिबिटिंग पोस्चर्स दे सकते हैं. टाइट मसल्स या स्टार्टिंग मसल्स है उनकी स्ट्रेचिंग और वीक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग. अकॉर्डिंगली जो मोस्ट कॉमन तो देखने को मिलेंगे दैट इज हैमस्ट्रिंग, एडक्टर एंड गैस्ट्रोक्लेनियस एंड स्ट्रेंथनिंग द वीक एंड द मोनोस्टिक मसल्स आल्सो. बैलेंस एंड वेट की बात करें तो उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए हम केयरफो एंड एयरफो का यूज करते हैं. मोस्ट कॉमनली जो तुम्हारा ऑर्थोसिस यूज होता है इन केस ऑफ सीपीज एंकल फुट ऑर्थोसिस. ओके, उसके साथ क्या मॉडिफिकेशन होंगे डिपेंड्स की चाइल्ड का खुद कैसा है उसके असेसमेंट पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट इज ट्रेडमिल ट्रेनिंग, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग which includes the practice the functional tasks. जो हमारा कंटेम्प्रेरी एनडीटी है जिस चीज पे फोकस करता है कि मोस्टली हमको फंक्शनल टास्क पे ही प्रैक्टिस कराना है और रिफ्लेक्सिव की मूवमेंट्स पे फोकस करना है, नॉट दी पोस्चर. Okay, then promote the independence in play and daily activities and use of assistive devices. HM therapies are hydrotherapy and lipotherapy, electrical stimulations, and family education is very very important, right? Basically first you have to tell about the severity and prognosis. This is very important. Then correct handling you have to tell. Daily stretching techniques because 1 hour of therapy is not sufficient for the child. Positioning and avoid the primitive triggering postures and encouraging the play-based rehabilitation. Okay, so these points are very important in respect of when we educate the family. Right? And the most common approaches which we used in the treatment, as I already told you about कि न्यूअर एनडीटी में हम फोकस करते हैं कि हम टास्क को रेट करते हैं उस पर काम करें. एनडीटी is given by both hand Carbobot. It focuses more on postural control and functional movement, and it uses the key points of control of hand handling, facilitation, and weight shifting techniques. In Volta, it is given by Vaclav Volta, and it stimulates the reflex locomotion through the pressure to the specific points. It triggers the automatic motor responses and it stimulates the reflex crawling and reflex rolling, and collectively it is known as reflex locomotion. Sensory integration therapy is given by Jean Harris. It is basically done by occupational therapist if there is any sensory issue. Usually CP child में sensory issue बहुत कम देखने को मिलते हैं, but still if it is present then it focuses on processing and responding to the sensory input, and it enhances the adaptive responses by giving the swing or the pressure. It depends whether the child is defensive or whether the child is seeking. It depends on the assessment. Then the root approach given by the Margaret Root, which uses the sensory stimulation to activate and muscle activity. Basically, some movements to facilitate the movement, some to move it. Next is PNF given by Cabot, not Ross. It uses the spiral or diagonal movements and which improves the strength and coordination by using the different techniques like rhythmic initiation, repeated contraction in different patterns, that is D1 and D2 patterns.
Okay, next is your ambulation predictor. As I already told you about कि जो हमारा GMFCS है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो हमें एक प्रोग्नोसिस शो कर देता है. ओके, तो the GMFCS level is 1 and 2 lower levels, it indicates higher chances of independent walking, right? लेवल अगर 3 है तो कुछ सपोर्ट के साथ चाइल्ड चल सकता है. But if the level is 4 and 5, have the poor prognosis, right? Postural control अगर अच्छा है तो better walking ability होगी. Age of sitting की अगर हम बात करते हैं, अगर 24 के पहले अगर independent sitting आ गई है, then it could be a positive predictor कि बच्चा चलेगा. ओके, मतलब वॉकिंग आ सकती है. बढ़िया. एबिलिटी टू क्रॉल अगर 18 मंथ से पहले क्रॉलिंग आ गई है, इट इज अ बेटर प्रेडिक्टर ऑफ एम्बुलेशन पोटेंशियल. सीजर्स नहीं होने चाहिए. ऑलवेज अगर वेल कंट्रोल्ड सीजर्स है तो प्रोग्नोसिस ओवरऑल गुड रहती है. बट अगर वेल कंट्रोल्ड सीजर्स नहीं है, बीच बीच में इवन जो की मेडिसिन चल रही हैं और आ रहे हैं, इट हैज अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस. इवन अगर नेक कंट्रोल भी कई बार नहीं आ पाता है अगर सीजर कंट्रोल नहीं है अच्छे से. ओके, next associated conditions, like I already told you, so many associated conditions are there, but the percentage are very less. So if there is a severe visual or hearing impairment or intellectual disability will be there, then it should be poor prognosis. And use of assistive devices, अगर हमने earlier appropriate यूज किया है तो मोबिलिटी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं. एंड प्रीवियस फंक्शनल स्किल्स अगर अच्छे हैं, मतलब अचीवमेंट जो हुए हैं माइलस्टोन्स अगर उसने अर्ली अचीव किए हैं, तो चांसेस हैं कि आगे भी प्रोग्नोसिस बेटर होगी, राइट? So these are the ambulation predictors. The question can be asked, if the child is having a GMFCS level 2, then what is the chance of ambulation of that particular child? या हमने कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप दिया है कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप का बच्चा है और इसने इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में सिटिंग स्टार्ट कर दी थी एंड ही और शी इज हैविंग अ GMFCS level of 2 or 3, then what could be the chances of ambulation? Okay, right? Is it okay for you? Anything you want to ask till now? Anyone? Are you checking all the points? Ma'am, I have a doubt. Yeah. How history taking mainly helps in, means what are the point in history taking that helps in diagnosis of disease, type of city disease? Okay, very good. See, type of CPA, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है ब्रेन का, ये हमें काफी कुछ पता चल जाता है. टाइप ऑफ सीपी तो हिस्ट्री टेकिंग से नहीं पता चलता, ये हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा. हाँ, कई बार ऑब्जर्वेशन हमें पता चल जाता है. ठीक है, देखो हिस्ट्री टेकिंग तो हमें सबसे पहले हमने बर्थ हिस्ट्री ली. ठीक है, बर्थ हिस्ट्री में लेते हैं कि बच्चा प्रीटर्म था, पोस्टर्म था या टर्म बेबी था. ओके, देन उसके बाद हम ये ले रहे हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी या सिजेरियन डिलीवरी थी, हॉस्पिटल में थी या घर पे थी. ये मेजर थिंग्स है. ठीक है, तो इससे हमें क्या आइडिया हो गया. प्रीटर्म बेबी तो नहीं था. प्रीटर्म अगर हम ले रहे हैं तो मदर की एज, ठीक है, अगर मदर की एज बहुत कम थी, मैटरनल एज मैटर्स. ओके, तो चांसेस हैं कि ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, ऐसी स्टडीज है. ठीक है, दूसरा अगर मदर की एज बहुत ज्यादा थी, प्राइमरी ग्रेविडा है, बच्चा पहला बच्चा है और अगर 35 के बाद और 36 के बाद कंसीव किया है, तो देयर आर चांसेस कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो सकता था. अगर मदर की एज ज्यादा है, दैट could lead to a chromosomal disorder, but अगर एज कम है, नॉर्मल है, that could lead to a other milestone disorders like CP, right? पोस्टनेटल हिस्ट्री में तुम्हारा बता सकते हैं कि जस्ट आफ्टर द बर्थ जॉइंटिस हुआ था. राइट, जॉइंटिस फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है. रिमेंबर, okay, if the level of bilirubin is more than, I think, certain level, that is I think more than 17 milligram per day, if it is more than this could be a pathological jaundice. Okay, and pathological jaundice जो होता है वो आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगेन
could lead to see, I told you about this slide. Okay, so पैथोलॉजिकल जो जॉइंटस है ना वो बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करता है. तो यहाँ से ये एक आइडिया हो सकता है कि दिस कैन बी टाइप ऑफ सीपी मिल सकता है, ठीक है, बट यू कैन बी श्योर. ठीक है, देन इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी कुछ चीजें क्लियर करता है कि वाइट बोर्ड गेट के साथ अगर बच्चा चल के आ रहा है, ठीक है, फिर उसने किसी भी चीज को पकड़ के खड़ा हुआ है लेकिन उसने अपना वाइट गेट कर लिया है या वाइट गेट कर लिया है, बेसिक सपोर्ट बढ़ा लिया है, ठीक है, राइट, या फिर वो चल के आने की कोशिश कर रहा है और टोज पे वॉक कर रहा है. तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, जिससे तुम्हें थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेंगे और ये कंफ्यूजन होगा जब आप टोन चेक करोगे. ठीक है, Yes, ma'am. okay, any other doubt? You are getting the answer, no? You're satisfied with this answer? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, great. Anyone else? Ma'am, it's a confusion purely motor affect करता है कि sensory? Yeah, it's pure motor disorder. सेंसरी इश्यूज की बात करी थी मैंने, जहाँ पे मैंने आपको बात करी है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की. तो बेसिकली इट इज अ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. ओके, इट कुड बी एज आई टोल्ड यू कि डिफेंसिव हो सकता है या सीकर हो सकता है. तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, लेस देन 5% ऑफ द सीपी पेशेंट हैव द सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज, जिसमें वेस्टिबुलर इश्यूज हो सकते हैं या टेक्टाइल इश्यूज हो सकते हैं, जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी से डांस कर रहे हैं या फिर हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत ओवर एक्टिव है. तो इस तरीके के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट इट कुड बी बिहेवियरल ऑल्सो. सो वी हैव टू differentiate between those things. ADHD में तो चाइल्ड हाइपर एक्टिव होते हैं. यही मैं आपको बोल रही हूँ कि सेंसरी इश्यूज बिहेवियरल इश्यूज को हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बिकॉज जैसे ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि इट्स नॉट अ वन डे थिंग, राइट. जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर चाइल्ड जो है वो अटेंशन सीकर है और उसकी वजह से वो इतना हाइपर दिख रहा है, ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका सेंसरी डाइट कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार हेड को बैन कर रहा है. वो तब भी करेगा जब आप उसके सामने नहीं है, ठीक है, बट इफ देयर इज अ बिहेवियरल इशू वो तभी करेगा जब आप सामने, ठीक है. तो ये ऑब्जर्वेशन है और इसके लिए बहुत सारे हम स्केल्स यूज करते हैं, बट इट इज नॉट अ वन डे थिंग. जब हम सेंसरी इश्यूज को असेस करते हैं ना तो उसमें हमें टाइम लगता है, समटाइम्स 1 वीक, समटाइम्स 15 days to 1 month to assess the sensory issues, right? Okay. Anyone else? Okay, so these are the common MCQs which I have shown here. The most common type of CP is, as I told you, fasting. Scissoring rate is most common in diaplegic CP. ये questions पहले पूछे जाते हैं. ये जो most common questions मैंने यहाँ पे लिखे हैं. The most common cause of cerebral palsy is prematurity. The time is due to the cerebellum involvement. Which type of CP is most commonly associated with prematurity is spastic diaplegic. This kinetic CP is caused by the basal ganglia lesion. Okay, so these are the most common MCQs, most common questions which are asked earlier in exams. Okay. Okay. Any other doubt? Done from my side. Which is the best treatment for CP patient? If we are talking about best treatment is definitely a NDT. Contemporary NDT works very good on CP patients, but not only the NDT. Okay, आप हमेशा different approaches का use करिए. Sometimes we need वोल्टा टेक्निक्स कि जब बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब हम, जो मैंने आपको इसमें बताया था कि हम स्पेसिफिक जोन्स का यूज करते हैं टू स्टिमुलेट द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, रिफ्लेक्स लोकोमोशन. ओके, सो इफ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी मूवमेंट देन वी कैन यूज द वोल्टा एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज द एनडीटी. सो एनडीटी में भी डिपेंड करेगा कि
जो हमारा अर्लियर एनडीटी था वो फोकस करता था कि हमको रिफ्लेक्स इंडिकेटिंग पोस्चर्स पे काम करना है, राइट, बट Yes, ma'am. वो बहुत स्टैटिक था। बट जो हमारा कंटेम्प्रेरी एनडीटी है वो बोलता है कि नहीं, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, चाइल्ड है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो हम टास्क ओरिएंटेड अप्रोचेस का यूज करते हैं जिसमें हम रिफ्लेक्स इंडिकेटिंग मूवमेंट दे सकते हैं। ओके, तो हम उसको किसी न किसी तरीके से एंगेज कर सकते हैं, वो उसका पैटर्न होना चाहिए जो भी हम, बिकॉज जो एनडीटी है, रियल एनडीटी, इट इज नॉट अ क्लियर कट रेसिपी। हमको सिर्फ ये सोचना है कि बच्चे को हम किस तरीके से टास्क ओरिएंटेड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट में, और किस तरीके से हम मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली द यूज ऑफ मेनी अप्रोचेस, नॉट द ओनली वन, बट डेफिनेटली एनडीटी वर्क्स वेरी वेल, बट वी कैन यूज वॉइटा एंड PNF also, right? Yes, ma'am. But in practically there are so many patient, means maximum patient using therapy. No, in populations, they use for this. I saw somewhere. सेंसरी इंटीग्रेशन यूज किया जाता है इन वेरी सीपी में, इन वेरी लेस केसेस, ठीक है। ऑटिज्म के केसेस में किया जाता है, और जितने भी सेंसरी इश्यूज के केसेस होते हैं मोस्टली जो ओटी में आते हैं, ठीक है, जिनमें सेंसरी इश्यूज अक्सर, इसीलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे रखा है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बिकॉज मोर देन 5% ऑफ द सीपी पेशेंट्स हैव सेंसरी इश्यूज, नॉट ऑल द पेशेंट्स। 80 to 90% केसेस में आपको ये सेंसरी इश्यूज नहीं मिलेंगे। उनमें मेनली जो इश्यूज देखने को मिलते हैं वो ग्रॉस मोटर देखने को मिलते हैं और फाइन मोटर इश्यूज देखने को मिलते हैं, मोटर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, नॉट दी सेंसरी प्रॉब्लम। बट यस, डेफिनेटली जो मैं बोल रही हूँ कि कुछ केसेस में एसोसिएटेड हो सकते हैं, तब हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के पे जाएंगे, जहाँ हमने टेक्टाइल स्टिमुलेशन या स्विंग एक्टिविटी, न्यूट्रिशन सबका यूज किया है। Okay, thank you, ma'am. Yes, anybody else? Hello, good morning, ma'am. Good evening, yes, good evening. मैम जैसे हाइपोटोनिक सीपी में हमें कोई मसल स्ट्रेंथन करना होता है तो एक्टिव का यूज करते हैं, तो मैम इज बेनिफिशियल और नॉट? यस, डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल, नो डाउट। मैम कितने दिन में दिखे रिजल्ट? You can't say this in a one assessment कि कितने दिन में रिस्पॉन्ड करेगा। यूजुअली जो नॉर्मल रहता है टोन, अगर तो चांसेस होते हैं कि 6 to 8 वीक्स और 10 वीक में रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है, स्ट्रेंथन होती है पर्टिकुलर मसल। बट इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सीपी यू कांट से कि इतने दिनों में ये रिस्पॉन्ड करेगा ही, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज की प्रेडिक्टर के लिए। जैसे अगर हम मोटर कंट्रोल की बात करें तो मोटर कंट्रोल इन्वॉल्व्स द इंडिविजुअल टास्क एंड एनवायरनमेंट, ऑल थ्री। ओके, सो इंडिविजुअल के अपने फैक्टर्स हैं, उसके कंटेक्चुअल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आउटकम क्या होगा, ठीक है। दूसरा टास्क डिसाइड करेगा, तीसरा एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो एक कोई भी चीज केवल एटीएस के बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते हो कि कितने दिन में बच्चा चलना चालू करेगा या कितने दिन में क्या उसकी फीलिंग्स होगी। ये पूरा होल असेसमेंट ही बता पाएगा। केवल एक चीज ये डायग्नोसिस कि बच्चा अटैक्सिक सीपी है और कितने दिन में चलेगा ये नहीं बताया जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर अटैक्सिक सीपी है तो चलता है, एम्बुलेशन नहीं हो ऐसा नहीं है। Anybody else? Any doubts from anybody else? Okay. So, thank you so much, Dr. Mayuri Madam, for sharing your expertise and insights and the presentation on topic cerebral palsy. Definitely, it was invaluable and brought a fresh perspective to the subject, and definitely to help our students to get a good scoring question we'll ask from this cerebral palsy topics. So, thank you so much, ma'am. Thank you, sir. For your valuable presentations. अभी मैं आप लोग को बताऊंगा जितने पार्टिसिपेंट इधर प्रेजेंट है तो जो अभी हम लोग कोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, ये जो कोर्स का फंडामेंटल्स क्या है,
इसका मेन एम क्या है और किस तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा इसका डिटेल्स चीज मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आपको, ठीक है। सो जैसे आप ये फ्लायर देख पा रहे हैं, ये फ्लायर जो भी हम लोग अभी कोर्स डिजाइन किए हैं ये 2 मंथ का कोर्स है। और ये जो कोर्स है ये इट्स एन एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन फॉर एमपीटी एंट्रेंस एंड फॉर गवर्नमेंट जॉब, राइट। सो एमपीटी एग्जाम जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एमपीटी एंट्रेंस होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, लाइक एसबी नितर हो गया, एनआईएलडी हो गया, जेएनडीयू हो गया, जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द, या साउथ में भी कुछ है कॉलेजेस, लाइक इन सब कॉलेज में कुछ एंट्रेंस करता है। लेकिन दिक्कत क्या है, सीट बहुत कम रहता है। जैसे निर्तार में कुछ बहुत कम सीट है, एनआईएलडी बहुत कम सीट है, लेकिन पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा है। 10 सीट है, पार्टिसिपेंट 500, 1000, 2000, मे बी 5000, तो लेकिन सीट तो 10 है। तो इसलिए डिपेंड करता है आप किस तरह इसको प्रिपेयर कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन कैसा है, आपका स्टडी कैसा है, आपका हार्डवर्क कैसा है। और सिर्फ हार्डवर्क करने से नहीं होगा, स्मार्ट हार्डवर्क, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कितना प्रीवियस क्वेश्चन कवर करते हो, ये सब के ऊपर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन और जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, अच्छा रिजल्ट। तो हम लोग का माइकिन फिजियो एकेडमी सिस्टमेटिक एंड स्मार्ट वे में ये सारे मटेरियल प्रिपेयर किए हैं। और आप इसमें हम लोग का मटेरियल में कंसेप्ट है, उसके साथ में एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट सब्जेक्ट्स भी है। और आप बीट बाय बीट एवरी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बाय हार्ट इसको याद रखेंगे, देन डेफिनेटली कैन गेट अ सीट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर एमपीटी एडमिशंस। इसलिए आपका मेहनत चाहिए, आपका लगन चाहिए, आपका स्मार्ट प्रिपरेशन चाहिए एंड आपका डिसिप्लिन चाहिए। क्यों, हम देखे हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स कर चुके हैं। इनिशियली 10-15 दिन तक स्टूडेंट लोग का मन में डिसिप्लिन आता है, हार्डवर्क होता है, लेकिन धीरे धीरे जोश कम हो जाता है। ऐसे होने से आपका सक्सेस का चांसेस बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज कर रहे हो और कंसिस्टेंसी रहेगा तो डेफिनेटली कैन गेट सक्सेस। हम आपको जो मटेरियल दे रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, उसको रेगुलर अटेंड कीजिए। हम लोग को लोग बार बार फोन करते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो, यस वी आर हैविंग रिकॉर्डेड वीडियो, वी आर हैविंग दैट फैसिलिटी, बट लाइव क्लास अटेंड करना और घर में बैठ के रिकॉर्डेड वीडियो देखना हेल एंड इवन डिफरेंस है। रिकॉर्डेड वीडियो देखने में आपको कभी बुरी लग सकता है, या कभी मन करेगा हाँ ठीक है आज थोड़ा देखता हूँ, कल थोड़ा देखता हूँ, आप कवर नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो कोशिश कीजिए, हम जितना भी लाइव क्लास कर रहे हैं टाइम मैनेज करके, आपका प्रोफेशनल लाइफ से, आपका फैमिली लाइफ से, आपका वर्क लाइफ से तो टाइम निकाल के इस जो 9 से 10:30 या 9 से 10 बजे टाइम में आप इसको सेपरेट रखिए। आप कोशिश कीजिए हर लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए, ये पहला चीज है। और जितने मटेरियल हम दे रहे हैं उसको उन द सेम डे उसको कवर कीजिए। और आपका जो पर्सनल नोट भी बनाए दीजिए, पर्सनल नोट भी बनाइए, जो कि आपका एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इट वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अपना पर्सनल नोट, हम लोग का तो नोट देंगे, उसके साथ में आपका पर्सनल नोट भी बनाइए, ठीक है, ताकि इजीली क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। और इंपोर्टेंट चीज है, हम जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया साइड में प्लीज शेयर मत कीजिए। ये हम लोग का कॉपीराइट रिजर्व है, इसको कहां भी आप शेयर मत कीजिए। ये अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप पे किए हैं, आप इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, तो आप इसको खुद पढ़िए। किसी दूसरे अपना फ्रेंड हो या अपना रिलेटिव, किसी को शेयर मत कीजिए। इट्स वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, राइट। अनदर थिंग, अभी जितना भी फिजियोथेरेपिस्ट है प्रोफेशनल है, एंड प्लीज रेस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशनल्स, देयर डिग्निटी, देयर प्रोफेशनलिज्म, प्लीज रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, ओके। सो वन रिक्वेस्ट। और ये जो कोर्स कर रहे हैं 2 मंथ का कोर्स रहेगा, इसमें वीकली 4 to 5 क्लासेस रहेगा और सारे क्लासेस लाइव क्लासेस रहेगा। और आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, उसके साथ में सारे क्लासेस गूगल मीट के थ्रू होगा। और मोस्टली इसका टाइम रहेगा 9 to 10:30, ठीक है। कभी कभी 9:30 भी हो सकता है, तो कभी कभी 9 to 10 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट मटेरियल, राइट। और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ 2 month कोर्स विल डू सम रिविजन ऑफ कोर्स। एंड इसमें ऑल द सब्जेक्ट्स आर हाई यील्ड कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग्स,
and always we are providing entrance exam based MCQs, and also इसमें क्या होगा, आप लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप लोग डिफरेंट सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज कराते हैं। कोशिश कीजिए जितना भी हम लोग टेस्ट सीरीज कराएंगे सब टेस्ट सीरीज आपको अटेंड करना है, ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, राइट। तो उसके साथ में हम भी जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन पेपर है, एमपीटी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है, सारे टॉपिक हम लोग कवर कराएंगे। रिविजन क्वेश्चंस आप उसको भी सॉल्व कीजिए और याद रखना है आपको। लेकिन रिक्वेस्ट है सारे लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, उसके साथ में सारे टेस्ट सीरीज भी अटेंड कीजिए, राइट। और ये जो हम लोग कोर्स करा रहे हैं, आपको और रिक्वेस्ट है, आप जितना भी फ्रेंड सर्कल है सबको एक कोर्स के बारे में सर्कुलेट कीजिए, ताकि ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे, ताकि आपका कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर भी बढ़ेगा, आपका डिस्कशन भी बढ़ेगा, राइट। तो आपका बहुत फायदा होगा, राइट। तो किसी कुछ प्रकार डाउट है, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कोर्स, यू कैन आस्क हियर। I have a doubt to ma'am. हाँ, यस, पूछो। Ma'am, CP is ma'am, Mayuri ma'am. Yes, yes. Ma'am, CP is not progressive, Yes. not curable, but preventive. ठीक है, पर प्रोग्रेस मतलब पेशेंट का कंडीशन कैसे डिटेरियोरेट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे। Because of secondary complications. इसीलिए मैंने जब असेसमेंट और ट्रीटमेंट बोला था तो मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम अच्छी कर सकते हैं, बट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से हम उसको फोकस ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बिकॉज एक टाइम जो डैमेज हो गया है उसकी वजह से स्पास्टिसिटी या जो भी प्रॉब्लम्स डेवलप है, ठीक है, और कंटिन्यूसली पेशेंट इज नॉट एबल टू डू द मूवमेंट और उसको प्रेसिपिटेट भी मिल जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे जॉइंट्स में मसल्स में ब्रांचेस को प्लग हो जाते हैं, लिमिटेड मोबिलिटी हो जाती है, और इन लॉन्ग टर्म इट विल अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज कुछ मूवमेंट तो बचा ही नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट सिस्टम तो अलग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि वेट बियरिंग नहीं है तो इट कैन अफेक्ट द बोन डेंसिटी, और इफ इट कैन अफेक्ट द बोन डेंसिटी इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, and if there is osteoporosis can lead to a pathological fractures, okay. So limited mobility could lead to a fractures also, and limited mobility could lead to a involvement of your cardiovascular system also. तो CP के पेशेंट में बेसिकली जो सबसे ज्यादा डेथ होती है, जो फेटल चीजें होती हैं, वो बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ही होती है, नॉट बिकॉज ऑफ CP, नॉट बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर ब्रेन ओनली, राइट। तो दैट्स व्हाई इट increases the symptoms. Okay ma'am, thank you. Okay. Any other doubts related to our course? Anybody else? Any doubt? Dr. Ritu, are you asking something? Anybody? देखिए अभी जो हम लोग अभी मयूरी मैडम ने जो पढ़ाया है ना, वही नोट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। मयूरी मैडम ने आपको अभी जो पीडीएफ से, वो तो पीपीटी नहीं था, वो पीडीएफ था, जिस पीडीएफ से आपको पढ़ा है अभी हम लोग कोई पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैं इस बारे में एक चीज बोलना चाहती हूँ रितु। बेसिकली क्या है, मैंने आपको इनिशियल भी बोला था कि आपके पास दम नहीं करेंगे, ठीक है। सीपी पढ़ाने के लिए मैं आपको और 1 घंटा सीपी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, सारी चीजें सीपी में, बट हम लोग बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सोची कि हम आपको पढ़ाएंगे, अदरवाइज आपके पास कोर्स मटेरियल बढ़ता जाएगा, और एग्जाम टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या पढ़े, क्योंकि ऑलरेडी 4 इयर्स में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो सेम मटेरियल हम आपको दे देंगे तो कोई मतलब नहीं, ओके। दैट्स व्हाई आपको इस तरीके से बहुत हाई जो पॉइंट्स रहेंगे ना वही मिलेंगे आपको। Dr. Jyotiranjan Sahu, would you like to say something to our participant? Dr. Jyoti? No, already आप मैसेज
जो कंधे की यानी जैसे इनिशियल फेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और जो कि हम लोग जो पास में क्लासेस किए हैं रिकॉर्डेड वीडियो हमारे पास है, हम लोग चाहेंगे तो वैसे भी वीडियो चला लेंगे, बट लाइव इंटरेक्शन हमेशा इफेक्टिव रहता है। हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप कितना अटेंटिव रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में रहता है कि आप ऑन करके कहीं चले जाएंगे, तो इसीलिए हमेशा इंटरेक्टिव क्लास होने से इंटरेस्टिंग रहता है। एंड ऑफकोर्स जैसे मैडम ने बताया कि हम लोग आपको सब देंगे, एक जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे उन लोग का सब गूगल क्लासरूम बनेगा, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें हम लोग आपको वार्ड डॉक्यूमेंट्स का मैटेरियल देंगे। जैसे सीपी को हम लोग जैसे मैडम ने बताया हाई मैटेरियल हम लोग उसको कॉन्सेप्ट करके 2 to 3 पेजेस में देंगे, जो आपको एनपीडी एंट्रेंस के लिए काम में आएगा, और जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काम में आएगा। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड, those are preparing especially for the Sports Authority of India, we are planning to conduct extra classes regarding sports injury prevention program and management. तो जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए जैसे SIC हो गया, रेलवे हो गया, उसके लिए हम लोग जनरल क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर हमारा सब्जेक्ट मैटर क्लासेस। तो आप सबको PDF फॉर्म में मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए ऑलरेडी हम लोग को क्लास में भी आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा कर सकते हैं। नो डाउट अच्छा कोर्स था, ये रिसेंटली हम लोग MP का कोर्स कंप्लीट किए हैं, गुजरात का भी कंप्लीट किए हैं। तो जो भी डाउट है आप जो क्वेरी नंबर है उसमें आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Okay, so it was wonderful to see such an active engagement and enthusiasm in a virtual setting. So thank you to all the participants present here for your thoughtful questions and participations. You truly made the session interactive and memorable. So thank you so much to all the participants present here. Thanks again. And we will convey about the upcoming class rules in our WhatsApp group. And I will also share a link, Google Classroom link in WhatsApp group. Please join that link. And it should be available in that Google Classroom, and all the materials will be posted there only. Okay, so thank you so much. Now you can leave our session.